Now, is the PPT visible to you? The questions in the PPT, are they visible to you? If yes, kindly write in the chat box. Oh, sure. So now the question is, this is question number 46 of the GATE 2025 exam. Now, what the question is saying? Let us first understand what the question is saying. Okay. The question is simply saying that the blasting is being carried out by the detonator and cartridge emulsion explosive. The burden and spacing. The burden and spacing has been given. Take a burden is given as 3.5 meter. Spacing is given as 4.5 meter. Bench height is given as bench height, that is H, is given as capital H, is given as 10 meter. Subgrade drilling small h is given as 1 meter. Stemming is given as 4 meter. So at last we have to find out the cost of the blasting. Okay. So first of all, we have to understand that linear charge rate concentration means charge concentration is 16 kg per meter of the drill hole. Detonator cost of detonator that is being used is rupees 800. The electronic detonator that is being used here. And explosive cost. Explosive is rupees 30 per kg. The cost of blasting material per cubic meter of blasted rock. Okay. Cost of blasting the material per cubic meter of the blasted rock. So this is the question. So this is a question. So this is the question and it is being summarized here. Okay. So now we have to find out the cost of the blasting per unit of the material blasted. Okay. So first of all, we have to find out the how much is the material that I need to blast. So material to be blasted, that is volume of material to blast, 3.5 meter is the burden, 4.5 meter is the spacing, and height of the bench is 10 meter. So that much of the material we need to blast. Okay. That totally comes out that comes out to be I think 3.5 into 45, 157.5 meter cube. So 157.5 meter cube of the material that is I need to. Now if I say that this is the hole, so the 10 meter is the height of the bench that one need to blast, and 1 meter is the subgrade drilling. Okay. What is the essence of the subgrade drilling? The essence of the subgrade drilling is that we drill the hole slightly longer, slightly longer, slightly more than the height of the bench we want to blast. The aim is to provide proper blasting of the bench. Okay, the subgrade drilling. So 1 meter of the subgrade drilling is so the material would be whether it is explosive or whether it is stepping material. All of it would be would be inserted in a till the depth of the 11 meter. Okay. So if the total depth of drilling hole that is capital D is equal to H plus H, that is 10 plus 1 is equal to 11 meter. Okay. Now the stemming material, the depth of stemming material is 4 meter. So the depth of explosive
depth of explosive material. ठीक है, that is D with E is equal to total depth minus stemming depth, that is 11 minus 4, that is 7 meter. So this depth would be charged with the explosive. Now the charge concentration is around, the concentration of charge is around 16 kg of the charge would be accommodated in the 1 meter depth of the hole that is drilled. So how much is the explosive that is required? So the total amount of explosive required is DE into 16. It is 7 into 16. 112 kg of the explosive. Now the total cost of the explosive is 112 kg into 30 rupees per kg. ठीक है, that is इतना 3 to the 6. So this is the cost of the explosive that is required. Now the cost of detonator is rupees 800. So the value spent in blasting is equal to 3360 plus 800 0614. This is the whole value. And the material blasted, how much is the material that is blasted? What was the question? The cost of blasting material per unit of the, ठीक है, हाँ. So the value of the material blasted is 150. So what is the cost of blasting per unit of blasting? So the cost of the blasting is itna and the volume of the material. So the cost of the blasting is this. ठीक है, this is value A, and volume of material that is blasted, that is B. So what it is being asked now? It is asked the cost of blasting material. So cost of blasting per cubic meter per unit volume of material blasted. Cost of blasting is 4160 and volume of the material blasted is this much. So this amounts to, so one minute, let me zoom it. So this amounts to, I think, 4160 57.5. This amounts to rupees 26.413 per meter cube of material blasted. Okay, so this is the total value of the material that has been blasted. I think you all would have understood this question. Okay, is there any doubt? If there is no doubt, kindly say yes so that I can proceed to next question. Please bit fast. Hello. There's an, okay, Santon. Okay, sure. So this is the volume. The volume of the material that one need to blast is the burden into spacing into the height of the bench. So this is the value of the volume of the material that is blasted.
Now, if the hole is drilled till the length of the 11 meter with 10 meter of the height of the bench and 1 meter is the subgrade drilling, so 11 meter is the total depth of the hole. Okay, that is D, and S is the stemming material depth. So the net explosive, the depth to which the explosive will be inserted is around 7 meters. Now, total amount of the explosive required till that is depth into the 16 kg per meter of the explosive. Okay, so 112 kg of explosive is required. Now the cost of the explosive is given as 30 rupees per kg. If 112 kg of explosive is required, so almost around 3360. Value of about 3360 means itna money would need to be spent to buy such an explosive. The cost of detonator is 800. So the total cost of the blasting is cost of the explosive plus cost of the detonator. Okay, that amounts to almost around 4160. Now, if we have to blast, so this much amount is used to blast 157.5 meter cube of the material. So, what is the cost of blasting 1 meter cube of the material? So that we finally found out by dividing 4160 by 157.5. Okay. So now let's proceed to the next question. The next question is this. Okay. I think the next question is all about the pit slope. So there are 5 benches. Okay, so first of all, form a bench. 1 bench, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 5 benches are there. Height of each bench is 8 meters around. 1 minute. Hmm. Here, height of each bench is around 8 meters. So height of each bench is around 8 meters. Okay. Bench slope angle is 70 degree. At each level, the bench slope angle is 70 degree. The width of one bench is 24 meters and that of the other benches is 10 meters. Of other 4 benches 10 meters. So, ठीक है. The pit slope angle I have to find out. Okay. So in this case, let's say 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, and one is around 24 meters. Okay. So what I have to find out now? I have to find out the pit slope angle. So now this is the visual representation of the whole question. Okay. Kindly see this. This is the visual representation of the whole question.
Theta is the pitch slope angle that I need to find. Now let's solve it. Now solving it is a bit easy. So now it is easy to find out the height of the of all the benches. Height of all the benches is 8 was a 40 meter. Okay. Now since the now let's segregate a bench. This is the bench. This is the 70-degree angle that has been found. Height of the bench is 8 meters. Okay. So what would be the base? How to find out the base? So tan 70-degree is equal to height upon base. So base would be 8 by tan 70-degree. Okay, so this is the base. So in each bench, this much value of base would be added. This here it is B, here it is B. Similarly, a B would be added here. And a B would be added here. So the total base, that is B dash, would be 24 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. That is 40 plus 24. That is 64 plus. This is B. 1, 2, 3, 4, 4 times B. 1, 2, 3, 4, 5 times B. Sorry, 5 times of B. Okay. So that is 64 plus 5 into 8 by tan 70-degree. So this is how it is. Okay. That is B dash. Now tan 70, the value of tan 70 one needs to find out. The value of tan 70-degree is tan value of tan 70 is 2.7474. So that would be 64 plus 40 by 0.7474. So B dash would be 78.56 meter. Now pitch slope angle. Pitch slope angle would be tan theta is equal to capital H by B dash is equal to theta is equal to tan inverse H, that is 40 divided by 78.56. Okay. Tan inverse that is roughly around 27 degrees. So this is the pitch slope angle. Okay. This is the pitch slope angle that we need to find out. Now this value of pitch slope angle can be changed. The value of pitch slope angle can be changed with the change in the position of this value of 24 meter. If this 24, I took the 24 meter as the width of the topmost bench. If it would have been taken a width of any intermediate bench, the value of tan theta would have changed. Okay, the value of theta would have changed. So that is why such a huge range of the value of theta has been given. For my case, I found out, I kept it at the top and I found out
this value to be 27 degrees, around 27 degrees. So this is how this question would be solved, and the value of the pit slope will be found out. Okay. If there is any doubt, kindly yeah, sure. Sure. Okay. Is this question clear to all? If it is clear, kindly write as yes, and we will proceed further. Kindly write yes. Now let's switch to the next question. Yeah. This is a question of the sub-level stoping. Yeah. Basically, the question is very much about the it is it is just asking the total metal content that would be obtained once the ring hole blasting is done into the zone having around 2500 tons of the ore with 8% of the metal content. That was later on diluted with around 250 tons of the wall rock having 0.5% of the metal content. So I have to find out the net metal content into the material that is obtained. Okay. Now what it is saying, there was sub-level stope. Here there was a stope, ring hole blasting was done. Okay, and the material of around 2500 ton. So first of all, the material that was expected to extract, okay, was around 2500 tons of ore. Okay, but the blast resulted in a breakage of around 90%. Okay, breakage जो था due to blasting was around 90%. So ore that came out of ore obtained after breakage, obtained after blast जो था वो कितना था? वो था 2500 into 0.9 टन. ठीक है, due to this blasting. Now अब क्या हुआ कि during the blast 250 tons of the material that was stuck into the wall rock was also also accompanied the material that was broke. ठीक है, and that ठीक है,
Hello. This is the question. You all know the question. ठीक है. Now let's move on to the solution portion. This is a solution portion. So what it is saying is that the aim is to break the 2,500 tons of the ore. However, due to the blasting, only 90% of the ore that was 90% of the ore was recoverable. So the total amount of the ore that was obtained after the blasting was around this much. This is the ore. This is around this much tons of the ore that was broken down. Okay. Now this much value of the ore contains around 8% of the metal. Okay. So the amount of metal obtained, with this ore was 2250 into 8 by 100. How much that was? 25 4 100, 25 4 2 that was around 180 tons. That was around 180 tons of the metal was obtained due to the package. Now what happened is that once it broke due to the blasting, an ore work of around 250 tons. Due to the ore break, around 250 tons of wall rock also mixed. Okay, also mixed with the 2250 tons of the ore that was blasted. Now this wall rock has around 0.5% of the metal. Okay, so the metal added due to the wall rock is 250 tons into 0.5 by 100. ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग. ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन. तो इसके कारण 1.25 टन का जो है मटेरियल और ऐड हो गया. ठीक, अब इसमें क्या दिक्कत है कि अब टोटल मटेरियल हमारे पास कितना हो गया? 180 टन्स मेन प्लस डाइल्यूशन का 1.25 टन्स. तो हमारे पास हो गया 181.25 टन्स ऑफ द टोटल मेटल. ठीक है, जो यहाँ पर मेटल कंटेंट इतना है. अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो भी मटेरियल जो ब्लास्ट मक है हमारे पास जितना हमारे पास इसमें मटेरियल है उसका 95% ही हम रिकवर कर पा रहे हैं. तो हमारा जितना मेटल है उसका भी हम फिर 95% रिकवर कर पाएंगे. सो तो मेटल की जो रिकवरी होगी वो होगी 181.25 टन into 95 by 100. So this is the value. This is the value of the material that we will finally get, and that is around. ये हो गया फाइनल कैलकुलेशन. और इसमें हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन में ये था कि हमें एम था हमारा 2500 टन ऑफ द ओर को ब्लास्ट करके निकालना. लेकिन जब हम ब्लास्ट करते हैं तो इन रियल कंडीशन जो हर चीज की एफिशिएंसी होती है, तो ब्रेकेज एफिशिएंसी जो थी एक्सप्लोजन की वो थी 90%. तो हम 2500 टन अगर लेते तो हमको उसका 90% ही मिलता. तो 2500 टन का 90% जो ब्लास्टेड मटेरियल मिला हमें वो मिला 2250 टन. अब इस 2250 टन के मटेरियल में कितना मेटल रहेगा? तो 8% था. मतलब जो हमें ओर है उसका 8% मेटल है. तो 2250 टन का 8% हमें मेटल मिला. तो हमें लगभग 180 टन का मेटल मिल गया. ठीक है, लगभग 180 टन का मेटल मिला. लेकिन जब हमने उसको ब्लास्ट किया तो साथ में वॉल रॉक भी गिरा. वॉल रॉक 250 टन का जो वॉल रॉक था वो भी एक्सप्लोजिव से गिरा. उसका जो था उसने क्या किया, जो गिरा तो उसने डाइल्यूट कर दिया इस पूरे सिस्टम को. ऐसे हमारे पूरे सिस्टम में रहना चाहिए था हर समय मेटल कंटेंट 8%. लेकिन हमारा मेटल कंटेंट कितना था? मेटल कंटेंट वॉल रॉक में 0.5%. तो हमें 0.5% जो था उसके हिसाब से हमको इसमें 1.25 टन ऑफ द मटेरियल वॉल रॉक से मिला. तो हमें टोटल टन ऑफ द क्या बोलते हैं मेटल जो मिला वो था
181.25 टन। ठीक है, अब 181.25 टन, उसमें क्या था कि जो ब्लास्टेड मक है उससे ना 95% की ही रिकवरी। ठीक है, तो 95% की रिकवरी हुई तो हमारा 95% ऑफ 181.25 टन हमने लिया, तो हमको 172.2 टन मिला मटेरियल। तो बेसिकली ये है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट है। अगर कोई डाउट हो तो आप कोई डाउट नहीं है तो आप इसमें यस लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक प्रोसीड कर सकूं। थोड़ा जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, काइंडली रिस्पॉन्ड क्विकली। हेलो, ये सॉल्यूशन है पूरा, ये है सॉल्यूशन। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें, ओके श्योर, so now let's move on to the next question. अब इसमें जो क्वेश्चन है उसका डिमांड क्या है? उसका डिमांड ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 400 ml पर सेकेंड जो है ज़ैंथेट कॉलम का ऑफ हाइट h शोन इन द फिगर। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये हो गया, आपको कॉलम था, वहां से कुछ मटेरियल ऐसे एक मिनट, वहां से कुछ मटेरियल वाया सम डक्ट जो वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, जो रेट ऑफ फीड है फ्रॉम वन, फ्रॉम बकेट ए टू बकेट बी। तो बेसिकली क्वेश्चन की जो डिमांड है, तो जो क्वेश्चन की डिमांड है बेसिकली ये है, यह क्वेश्चन की डिमांड कि एक लिक्विड है जिसको यहाँ पे ज़ैंथेट बोल दिया इन्होंने, वो लिक्विड जो है आपका एक वेसल ए से वेसल बी की तरफ भाग रहा है। ठीक है, वेसल ए से बी की तरफ जाने का जो रेट है इसका वो है 40 ml पर सेकेंड। 40 ml का मतलब हो गया 400 इंटू 10⁻³ लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है जनरली फ्लूइड में। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी, ठीक है, क्यों इतना हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ये जो कॉलम है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जो है वो है आपका 10⁻⁻⁴। So the rate of fluid flow would be Q is equal to A into V. Q is 400
into 10 to the power minus 6. Area is 10 to the power minus 4 into V. That is around 2. So V is equal to 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब हम एक चीज इसमें देखें कि हमारा जो कॉलम ए है और कॉलम बी है उसमें अंतर क्या है. ये बेसिकली जो बर्नौलीज थ्योरम होता है ना, उसका ही है पोर्शन हमारा. इस पॉइंट पे आप देखिए, और आप एक पॉइंट ए लीजिए, इस पॉइंट को आप पी लीजिए, इस पॉइंट को आप क्यू लीजिए. ठीक है. नेट एनर्जी एट पॉइंट पी कितना होगा. और आप इस पॉइंट को, ये जो लाइन है जो कि क्यू के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, आप इसको एक डेटम मानिए. ठीक है. सो नेट एनर्जी, सो एनर्जी एट बर्नौली थ्योरम के हिसाब से आइडियल कंडीशन एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट क्यू, फ्लूइड का जो एनर्जी. ठीक है. तो पी पे क्या एनर्जी है इसकी पॉइंट पे. एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर जो हेड है बेसिकली, हेड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू हेड एट पॉइंट क्यू. ठीक है. इस पे पी लग रहा है, प्लस यहाँ पे ये इस डेटम से एच की हाइट पे है. सो रो जी एच. तो वहां पे नेट एनर्जी जो है इस पॉइंट पे इतनी है. सो पॉइंट क्यू पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है हाइट का, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत अंतर नहीं है. प्लस इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे फ्लूइड में एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v से निकल रहा है फ्लूइड. सो इसमें एनर्जी होगी हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर. पी एटमॉस्फेयर टू पी एटमॉस्फेयर कट गया, सो वी वुड हैव रो जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर. रो से रो कट गया, सो वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 2gh है. ठीक है. वेलोसिटी कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू h. तो 16 इज इक्वल टू 220h है. सो h जो है वो हो गया 16/20. इसमें दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 मीटर. दैट वुड बी 80 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर ये है. मुझे लगता है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर बर्नौली थ्योरम आता है लोगों को, फ्लूइड फ्लो का सिंपल एक थ्योरम है, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई डाउट होगा. कोई डाउट नहीं है तो अच्छा, Q इज इक्वल टू एवी वाला एक बार बोल देते हैं. Q इज इक्वल टू एवी वाला कॉन्सेप्ट देखिए, पहले समझिए उसको क्या होता है. ठीक है. ठीक है. अब आप ऐसे समझिए कि हमारा जो क्वांटिटी यहाँ पे है, इस बॉक्स में जो क्वांटिटी है वो है Q. वो किस चीज से डिफाइन होता है. एक तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन का है, वो ये आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, इसका आप A मान लीजिए, इनटू ये लेंथ, ये L मान लीजिए लेंथ है. ठीक है. इसका मतलब है कि इसमें कितना मीटर क्यूब मटेरियल है, दैट इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग. अब अगर यही वॉल्यूम, अब अगर इसी क्रॉस सेक्शन से, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ मटेरियल पर सेकंड निकलता रहे, फ्लूइड निकलता रहे, तो हम क्या करेंगे, Q डिवाइडेड बाय टाइम. हम इस Q को टाइम से डिवाइड कर देते. एरिया तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट इज पासिंग बाय इट. ठीक है. तो वॉल्यूम जो कि पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज Q डैश. ये इसको आप Q by T को Q डैश मान लीजिए. तो that is equal to area into this into velocity with which the fluid is moving. So Q dash is equal to A into V. ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ. Q is equal to AV यही होता है. ठीक है. अब आप इस केस में देखिए Q कितना है. Q हमारा था 400 ml पर सेकेंड. पहले हम इस ml पर सेकेंड को लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लीटर से इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो हमने 400 इंटू 10⁻³ लीटर पर सेकेंड. अब 1 लीटर में
ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक, हमारा क्या है देखिए, पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट क्यू का। क्यू जो होता है वो आपका होता है एरिया इनटू लेंथ, मतलब कितना वॉल्यूम आपका स्टोर्ड है इसमें, इसमें कितना वॉल्यूम आपका स्टोर्ड है। ठीक है। अब आपका इसमें कितना वॉल्यूम स्टोर्ड है ये आपने बता दिया। अब आपका जितना भी वॉल्यूम इसमें स्टोर्ड है, हेलो, जी जी, हो जाएगा, एग्जाम है क्या? ठीक, हेलो, हेलो, हाँ। सो अब इसमें इतना क्यू जो है यहाँ पे वो हो गया एरिया इंटू लेंथ। अब अगर यही हमारा क्यू जो है पर यूनिट टाइम्स हम उसको डिवाइड कर दें, तो एरिया तो कांस्टेंट है किसी एक फ्लूइड फ्लो का जोन का, बस हमारा लेंथ कितना, लेंथ ऑफ मटेरियल वहां से पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है। सो क्यू डैश जो है वो वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो जाएगा ए इंटू वेलोसिटी विद विच द फ्लूइड इज मूविंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हमने इसको यहीं पे यूज किया। तो हमारा क्यू कितना था, 400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया हमारा डिफाइंड था 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। तो वेलोसिटी हमें निकालनी थी, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें यहाँ से मिल गई, दैट इज अराउंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये है कॉन्सेप्ट, मुझे लग रहा है अब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो यस लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद जो है ना बर्नौली थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बर्नौली थ्योरम है कि आपने दो पॉइंट्स लिए, उस पर आपका एनर्जी का कंजर्वेशन आपने लगाया और उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इससे आपको लेंथ मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें ड्रैग लाइन के ऑपरेशन के बारे में बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको आप समझ लीजिए। बेसिकली जब ऑपरेशंस होते हैं, माइनिंग ऑपरेशन चलता है तो क्या होता है, माइनिंग ऑपरेशन चलता है तो आपका एक ड्रैग लाइन है, वो ड्रैग लाइन आपका एक बेंच पे बैठा रहता है। ठीक है, वो ड्रैग लाइन क्या करता है कि पहले की कट काटता है फिर बॉक्स कट काटता है। तो ड्रैग लाइन जो है आपका की कट और बॉक्स कट दोनों काटता है। तो ड्रैग लाइन जो आपका जिस बेंच पे बैठा होता है उस बेंच के नीचे वाले बेंच के मटेरियल को उठाता है। ठीक है, सुपर डिस्टेंट जो मटेरियल होता है उसको उठाता है वो बेसिकली, मतलब बेसिकली जिस बेंच पे बैठा है उसके ऊपर का मटेरियल नहीं उठाएगा, जिस बेंच पे बैठा है उसी बेंच के मटेरियल को वो उठाएगा। ठीक है, तो जो ड्रैग लाइन एक्सकवेट्स द मटेरियल अबव द वर्किंग बेंच, ये तो रॉन्ग है, तो ये होगा नहीं। टेंडम वर्किंग मेथड ऑफ वर्किंग रिक्वायर्स एटलीस्ट टू ड्रैग, इसमें टेंडम वर्किंग होता है, इसमें दो ड्रैग लाइंस एक ही लेवल पे बैठ के अपना काम करते हैं, मतलब दो ड्रैग लाइन होंगे वो एक लेवल पे ऐसे बैठे होंगे, तो ये टेंडम वर्किंग होता है। एक होता है, दूसरा होता है वर्टिकल, जिसमें कि दो ड्रैग लाइंस अलग अलग लेवल्स पे बैठे होते हैं और एक मटेरियल गिराता है फिर दूसरा उसको दूसरी तरफ गिराता है। ठीक है, टेंडम में क्या होता है कि यहाँ पे ये गिराया, इसने उसको उठा के जो वॉइड है वॉइड से उसमें गिराया, ये होता है टेंडम। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रैग लाइन है ये दो कट्स काटता है आपके, की कट और बॉक्स कट। ठीक है, की कट और बॉक्स कट। तो जो इनिशियल कट कटता है किसी भी वर्किंग के लिए, फ्रेश कोल को एक्सपोज करने के लिए, उसको वो कहते हैं की कट। उसके बाद का कंजिक्यूटिव जो कट कटता है कोल को एक्सपोज करने के लिए वो होता है बॉक्स कट। ठीक है, तो पहले आप की कट काटेंगे और फिर आप बॉक्स कट काटेंगे। So in this case, what was happening is that the key cut first option is true, second is the true, and third one is false. C is false, and D1 is also true, क्योंकि वो वॉकिंग एक पैड होता है, पैड के थ्रू वो धीरे धीरे वॉक करता है। ठीक है, so this is how this question was basically a theoretical question related to the operations of the mind. And so I think that we need to understand the mining operations before solving this question, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें माइनिंग ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। ठीक है,
क्या कोई डाउट है कमलेश्वर? कमलेश्वर आपको कोई डाउट है तो पूछिए लिख के। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अनिमेश, कमलेश्वर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत स्लो नहीं होना है, थोड़ा सा फास्ट रहना है। ये डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कोयला है, इन सिटू डेंसिटी मतलब रो आई जो है हमारा है, और ब्लास्ट हो जाता है कोल, तो जो कोल की डेंसिटी है रो बी, वो हो गई। ठीक है, हमें स्वेल फैक्टर बताना है। ठीक है, तो स्वेल फैक्टर हमको अगर बताना है तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या होता है, बेसिक सी बात यह है कि जो स्वेल फैक्टर होता है, अगर आप उसको वो देखिए तो दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज। तो स्वेल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये समझिए। स्वेल फैक्टर बेसिकली एक मेजर होता है जो कि बताता है कि एक मटेरियल कितना एक्सपैंड हुआ है जो उसे एक्सकवेट किया गया। मतलब अगर हमारे पास एक मटेरियल था जिसकी डेंसिटी या जिसका जो कि हमारा 1 मीटर क्यूब में पहले मान लो वो 10 किलो था। हेलो, हेलो, सर एमएसक्यू में वन ऑप्शन रॉन्ग चॉइस किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो आपको सभी ऑप्शन सही होंगे तभी आपका वो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। हम्म, तो अब इसमें क्या होता है, शेल फैक्टर होता क्या है? शेल फैक्टर बेसिकली होता है, मेजर होता है कि कितना आपका एक मटेरियल एक्सपैंड कर गया। मतलब मान लीजिए 1 केजी मटेरियल था पहले, उसका वॉल्यूम कुछ था। ठीक है, तो अब इसको मान लो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंटैक्ट मटेरियल। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेम यूनिट है जो कि आपका ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका स्वेल फैक्टर कितना होगा? अम, एक ही मास है एम, मास अपॉन इट्स वॉल इन ब्लास्टेड फॉर्म अपॉन नहीं, कहाँ चला गया भाई, डिलीट करो। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसमें मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। मास का एम है, एम इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड एम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
इंटैक्ट, हाँ ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम सॉलिड। मास अपॉन वॉल्यूम सॉलिड होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा। सो हाँ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा? स्वेल फैक्टर इज, स्वेल फैक्टर बेसिकली होता क्या है? सर कोई और दूसरे कलर से लिखिए विजिबल बहुत कम, आई एम सॉरी। ठीक है, देखो, रो ऑफ इंटैक्ट मटेरियल था 1320 केजी पर मीटर क्यूब, रो ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल है। ठीक है, ये हो गया। ये आपको अब दिख रहा है? अब आपको, एक मिनट, अब आपको दिख रहा है ये? आई थिंक कि मुझे लग रहा है अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। नॉस्टल फैक्टर, सेल फैक्टर आपका हो जाएगा जो लूज मटेरियल है, यूनिट वेट ऑफ लूज मटेरियल अपॉन यूनिट वेट ऑफ इंटैक्ट मटेरियल। ठीक है, so unit weight of the blasted material, loose material means the blasted material, intact material means with the material before blasting. So the unit weight of the loose material is 952 kg on the of the blasted material is kg. So this will come around 952 divided by, that is around 0.72. ठीक है, so this is how swell factor is being calculated. So कोई डाउट है आपको? मुझे लगा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार आप बताइए मुझे देख के। बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि आप कितना, आपका मटेरियल स्वेल कर गया है। ठीक है, कितना परसेंट जो है वो मटेरियल स्वेल कर गया आफ्टर ब्लास्टिंग, तो स्वेल फैक्टर बेसिकली यही होता है। दिस इज व्हाट स्वेल फैक्टर इज। अनिमेश, इसमें कोई डाउट है आपको? ओके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शॉवर डंपर कॉम्बिनेशन पर बेसिकली उसमें कहा जा रहा है कि लोडिंग टाइम डंपर का है, ठीक है। लोडिंग टाइम जो है आपका वो है 3 मिनट। साइकिल टाइम जो है वो है 22 मिनट। एक शॉवर डंपर कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक शॉवल है और 8 डंपर्स है। उसमें बताना वेटिंग टाइम कितना होगा एक डंपर का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, सिंपल है बस हमें समझना होगा क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि 22 मिनट है टोटल साइकिल टाइम एक डंपर का, और लोडिंग टाइम है 3 मिनट, ठीक है। अगर ऐसे ही 8 डंपर एक शॉवल भरेगा तो शॉवल का जो टाइम हो गया टोटल फॉर फॉर फिलिंग 8 डंपर्स, तो शॉवल का जो टाइम हो गया टोटल टाइम फॉर शॉवल टू फिल 8 डंपर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 24 मिनट, ठीक है। अगर 24 मिनट, इसका मतलब क्या है कि वन, अब आप ऐसे मानिए इसको कि ये शॉवल है, यहाँ पे एक डंपर, दो डंपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले डंपर को उसने 3 मिनट में दिया। पहला डंपर अपना गया, मान लेते हैं कि यहाँ CHP है या यार्ड है, ठीक है। यहाँ से गिराया, गिरा के जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका क्या होगा, अब उसको क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पहुंचेगा तो ये हो सकता है कि लास्ट वाला डंपर को लोड मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि इसका कितना साइकिल टाइम 22, यहाँ से 3 मिनट लिया, 3 मिनट यहाँ लिया उसने, बचा जो होल टाइम है यहाँ से यहाँ तक ये 19 मिनट का था। यहाँ आया और यहाँ पे वो वेट कर रहा है, इसी 19 मिनट में वो वेट भी करता है, ठीक है। अब क्या है कि जब वो वेट कर रहा है तो उस दौरान ये लास्ट वाला डंपर आपका यहाँ पे भर रहा है, क्योंकि 24 मिनट है इसका, और ये 19 मिनट्स में से घूम के आ जाएगा, इंक्लूडिंग इस 3 मिनट। 3 मिनट उसको भर देगा एक बार, तो उसके बाद वो 19 मिनट भर के चला है। तो ये लास्ट वाले को जब ये लोड दे रहा होगा तो ये आके यहाँ खड़ा होगा, तो कितना कितना लास्ट वाले को जब ये लोड दे रहा होगा तो ये 21 मिनट से देना स्टार्ट करेगा और 23 मिनट्स तक इसको लोड देगा। लेकिन ये जो है अपने 22 मिनट्स बाद आके यहाँ पे अपने लोडिंग के बाद अपने आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो बचा कितना टाइम, 24 मिनट्स इसको लगेंगे और 22 मिनट्स एक टोटल साइकिल टाइम हो गया डंपर का, मतलब अगर डंपर की एक साइकिल स्टार्ट हो गई तो कम से कम एक डंपर को जो है 2 मिनट जो है यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है, 2 मिनट खड़ा होना, तो इसका लिए जो वेटिंग टाइम हो गया वो हो जाएगा 2 मिनट्स का, ठीक है। तो बेसिकली सवाल जो है ये ऑपरेशन रिसर्च का है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये सॉल्व थोड़ा सा ऐसे ही होगा, नॉर्मल तरीका है इसको सॉल्व करने। कोई डाउट है इसमें, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई डाउट है आपके लिए। हाँ ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ये बेसिकली फैन से रिलेटेड है, मुझे लग रहा है कि सबने सॉल्व किया भी होगा। इसमें एक बार फैन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझ लीजिए। फैन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसे, ठीक है। एक माइंस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका ऐसा, जहां पे माइन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व और फैन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट होता है ये, ठीक है। इस पॉइंट का क्या कहने का मतलब है कि ये पॉइंट वो होता है जिसके बाद की क्वांटिटी जो होता है हेड, सॉरी, जिसके बाद की क्या है, फैन का है ना, हाँ। जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इस पॉइंट के बाद अगर आपका क्वांटिटी कम होगा, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ कम होगा तो आपका हेड भी कम होने लगेगा, ठीक है। हेड कम होना इसका मतलब फैन आपका इस पॉइंट पर स्टॉल जोन में जाने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉल जोन में जाने का मतलब क्या होता है कि ये रोटेट तो फैन खुद कर रहा है ठीक है, क्वांटिटी कम होने पे फैन आपका रोटेट तो फुल एफिशिएंसी कर रहा है,
बट ड्यू टू ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स वो क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट में हेड नहीं जनरेट कर पाता। तो इसका मतलब आइडियली तो आपका ऐसे जाना चाहिए, कर्व आपका ऐसे उठ रहा है अगर तो आपका कर्व ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पॉइंट के बाद ये इतना हेड ही नहीं जनरेट कर पाता। तो ये अपना जो है ये जो है यहाँ से आपका नीचे आना इसमें ड्रैग और जो ड्रैग फोर्स होता है उसका बहुत, ड्रैग और लिफ्ट जो फैन के ब्लेड की वो होती है उसका बहुत, इसके पोजीशन पे इसका बहुत असर पड़ता है। तो ये पॉइंट बेसिकली स्टॉल पॉइंट होता है। इसके बाद जो है फैन में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है और फैन जो है खराब होने लगता है। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट है पी। अब पी पॉइंट जो इसमें पूछ रहा है, पी पॉइंट वैसे शट ऑफ हेड, मतलब एक ऐसा, मतलब कि हेड बहुत ज्यादा, क्वांटिटी नहीं है लेकिन हेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वो कंडीशन है, मतलब फैन इज अनेबल टू डिलीवर, मतलब हेड इतना आपने कर दिया है कि आपका फैन जो है, मान लीजिए, अरे यार सॉरी 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 दिख नहीं रहा है, सॉरी 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 सॉरी। तो बेसिकली फैन से रिलेटेड क्वेश्चन है यार। ठीक है, फैन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये हो गया आपका ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, जहां पे आपका फैन का कर्व और माइन का कर्व मिलता है, ये हो गया स्टॉल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया शट ऑफ वाला पॉइंट। पी पी पॉइंट जैसे शट ऑफ का मतलब क्या होता है, पी पॉइंट होता है, अब इसको ऐसे कीजिए कि ये आपका फैन में रेजिस्टेंस कब आता है, जब रेजिस्टेंस आएगा तो क्वांटिटी कम होगी, हेड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी गैलरी की साइज अगर बहुत कम है, गैलरी जैसा फैन ऐसे ओपन खड़ा है, ठीक है, तो जीरो, मतलब जीरो हेड है, हेड जो है जो फैन क्रिएट कर रहा है वो जीरो है, क्वांटिटी मैक्सिमम देगा। अब आपने क्या किया कि आपने इसके आगे, फैन के आगे छोटा सा टनल लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, क्वांटिटी टनल की लेंथ के रेजिस्टेंस के हिसाब से कम होती चलेगी। अब आप ऐसे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा कि ये जो है टनल की लेंथ जितनी है, टनल का रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा कि वो एक फैन का हेड को ऐसे क्रॉस करेगा। तो वो हो गया माइन का, मतलब माइन का रेजिस्टेंस हो गया जिसपे कि आपका फैन ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका जब। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको और बढ़ा रहे हैं और पीछे का स्टॉल जोन है, मतलब फैन का जो ब्लेड एंगल है उसमें जो लिफ्ट और ड्रैग का जो फिनोमेना होता है उसके हिसाब से एक सर्टेन रेजिस्टेंस ही, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी ही फैन जो है दे सकता है। उसके बाद क्या होगा कि आप इसकी लेंथ और बढ़ा दीजिए, लेंथ आप इसकी एल की वैल्यू और बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा कि क्वांटिटी घटेगी, लेकिन जो हेड जो फैन जनरेट कर रहा था, जो कि बढ़ रहा था, वो भी घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैन जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फैन जो है वो इट इज नॉट एबल टू ऑपरेट अंडर दोज कंडीशंस ऑफ द ब्लेड एंगल। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये आपका फैन थियोरेटिकली शट डाउन हो जाएगा, लेकिन एक वो हेड मेंटेन रखेगा अपना, एक थियोरेटिकल हेड अपना वो मेंटेन रखेगा, लेकिन क्वांटिटी वो अपना कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो इस पॉइंट पी को बोलते हैं थियोरेटिकल शट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन इसका रेलेवेंस है फैन को अंडरस्टैंड करने में अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। हो गया अभी के लिए तो। अब ये था आज के क्वेश्चन। तो ये कमलेश्वर, हेलो कमलेश्वर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है बॉस? हम्म अब जो क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डीपिलरिंग फेज की बात की गई है। ठीक है, अब उस डीपिलरिंग फेज के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया कि डीपिलरिंग फेज है उसमें जो बोथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है आपका, वो है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, आप उसको थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, से आप सॉल्व कर देंगे उसे ठीक है, आप उसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली सॉल्व करो तो आप एक चीज देखिए कि अगर एक कंडीशन है जहां पे कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो सेम है, उसका मतलब क्या होता है,
वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर है कि बल्ब के आगे कोई वेट मुस्लिम क्लॉथ नहीं लगा है, ठीक है। तो आपने उसको रोटेट किया, हाइग्रोमीटर को, आपका थर्मोमीटर का टेम्परेचर मतलब बिना मुस्लिम क्लॉथ के आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर किया 30। अब आपने वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए मेजर किया, तो आपने हाइग्रोमीटर में मुस्लिम क्लॉथ को एक रैप किया, पानी में डुबोया, और उसके बाद आपने क्या किया उसके बाद आपने उसको रोटेट किया। जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा? जब रोटेट करेंगे तो एटमॉस्फेयर की जो ड्राइनेस होगी उसमें आपका जो वेट, जो मुस्लिम क्लॉथ है, उसका जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर मुस्लिम क्लॉथ से निकल के आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन। इसके कारण क्या होता है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। ये चीज डिसाइड होती है आपके एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। लेकिन अगर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, तो मतलब क्या है? द atmosphere is saturated to the level of the moisture in the Muslim cloth, ठीक है। और मॉइस्चर जो मुस्लिम क्लोथ में होता है वो 100% ह्यूमिडिटी होती है। सो अगर ऐसा है तो आपका अगर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम आ रहा है, तो आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी 100%। तो बेसिकली डी था इसका आंसर। मुझे लग रहा है कि आपको, कमलेश्वर, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने क्या मिस्टेक किया है? हाँ, 30 डिग्री टेम्परेचर है ना, दोनों दोनों सेम टेम्परेचर है, वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का दोनों सेम हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 100% होगी। क्यों? क्योंकि आपका वेट बल्ब जो टेम्परेचर होता है किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, उसकी रीडिंग्स जो वेट बल्ब टेम्परेचर की डिपेंड करती है, वो आपका देखिए इस पर डिपेंड करता है कि आपका ये थर्मोमीटर है, ये उसका बल्ब निकला है। अब आप क्या करते हैं, उसके बल्ब को आप एक क्लॉथ से ढक देते हैं जो कि वेट होता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इस थर्मोमीटर को। जब आपका थर्मोमीटर रोटेट होगा बहुत ज्यादा स्पीड पे अराउंड 100 रोटेशन पर रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मीटर मिनट के हिसाब से 200, तो आपका ये जो इसमें मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर आपको मुस्लिम क्लोथ में है, वो एक ओपन एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, ठीक है। मॉइस्चर का मूवमेंट हो, जो मॉइस्चर जब जाएगा तो क्या करेगा? जो मॉइस्चर यहाँ से जाएगा तो ये मुस्लिम क्लोथ में जो हीट है, जो अराउंड बल्ब वाटर टेम्परेचर जो हीट है, उसको लेते हुए जाएगा, जो लेते हुए जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन का मूवमेंट है मुस्लिम क्लोथ से ओपन एटमॉस्फेयर, वो डिपेंड करता है आरएच ऑफ द ओपन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट मुस्लिम क्लोथ और मॉइस्चर कंटेंट ओपन एटमॉस्फेयर में सेम है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम क्लोथ का जो में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और जो ओपन एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दोनों सेम है। लेकिन जब हम मुस्लिम क्लोथ को करते हैं तो मुस्लिम क्लोथ को वेट रखते हैं, एकदम गर्म, एकदम गीला। इसका मतलब उसका जो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 100% है। अगर मॉइस्चर कंटेंट मुस्लिम क्लोथ का 100% रह गया आफ्टर द रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब दोनों का नहीं चेंज होगा, दोनों का सेम होगा। उस केस में बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%। तो बेसिकली क्वेश्चन वही था, ठीक है। ये फॉर्मूला तो यार मुझे मुझे याद नहीं है, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। आई वुड बी, मतलब मैं बहुत फ्रैंक हूँ इस बारे में, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यार। इसमें आपको ऐसा कुछ वो नहीं होना था, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा थियरी की जरूरत नहीं। आई थिंक वैसे अब मुझे लग रहा है आप लोगों का क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, क्लास को एंड करता हूँ मैं।